بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. موسم یہ گرمی کا ہے لیکن لطیفہ یہ سردی کا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو سردی نہیں لگتی. ایک تو اپنا برفانی ریچھ ہے اور دوسری وہ خواتین جو سردیوں میں شادی پہ جا رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کو تجربہ بھی ہوگا اور مشاہدہ بھی ہوگا. اصل میں یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ ایک ہلکی پھلکی کسی نے چیز لکھی ہے کہ وہ خواتین کے ڈائجسٹ یا ناول یا خواتین کے جو رسالے ہیں وہ زیادہ پڑھتی ہیں اور پھر ٹی وی بیٹھ کے سیریل بھی دیکھتی ہیں لمبے لمبے، اور ان کے ہاں جو گفتگو کا انداز ہے وہ بدل جاتا ہے. ایک سہیلی نے کہا مبارک ہو تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اس نے کہا خیر مبارک، شکریہ، کیا نام رکھا؟ اس نے نام اس کو بتایا کہ باری فائران. اس نے کہا باری فائران، یہ کیا نام ہوا؟ اس کا کوئی مطلب تو ہوگا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے. اچھا، اس کا مطلب اس نے جو بتایا آپ بھی سنیں گے تو حیران پریشان سوالیہ نشان. اس نے کہا ڈوبتے سورج کے وقت حیران و پریشان بیٹھے ہدہد کی کھانسی. اچھا، یہ جو خواتین کے ہوتے ہیں ناول اور کہانیاں، اس میں کپڑوں اور بچیوں اور بچوں کے ناموں کا کوئی اسی طرح کا صورت ہوتی ہے. اچھا، اب اس کی باری تھی. اس نے دوسری پوچھا کہ تمہارے ہاں بھی تو بیٹی پیدا ہوئی تھی، تم نے کیا نام رکھا؟ تو اس نے کہا کہ ارتناش. اس نے کہا ہے ارتناش؟ میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے. اس نے کہا نہ سنا ہو پر یہ نام بڑا انوکھا، یونیک اور نویکلا ہے. تو اب اس کی باری تو اس نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خوبانی کے خشک پتوں پہ شام کے وقت بکری کا چھوٹا سا بچہ جب منہ مارتا ہے اس سے نکلنے والی آواز کو ارتناش کہا جاتا ہے. یہ جو عقل مند خواتین ہیں، ویسے میں نے کبھی اس طرح کا مردوں میں نہیں سنا. مردوں میں اگر نام رکھتے تھے دادے یا نانے عام طور پہ پڑھے لکھے ہوتے تھے لوگوں کے، تو وہ مشکل نام رکھتے ہوتے تھے. ہمارے بچوں کی نانی نے میری بیٹی کا نام جب رکھا تو وہ تھا انوش. اچھا، ہم نے رکھ لیا. اب سمجھ نہ آئے کہ یہ لفظ انوش ہے کہ انوش ہے. تو پھر میں نے ملتان فون کیا ڈاکٹر اسد عریف صاحب کو، اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پڑھے لکھے اور ادب پہ ان کی بڑی نگاہ ہے، بڑی کتابیں. ان کی اہلیہ بھی بہت ہی سمجھدار اور لوے خاتون تھی. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ دنیا بھر میں موو کرتے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو فارسی نسل ہے لفظ اور یہ انوش ہے، اور اس کا پھر انہوں نے مطلب بتایا. تو اس کے بعد ہمیں وہ اس نام پہ یکسوئی ہوئی. پر یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں جدہ میں عبد الرحمن فاروق. ویسے تو کوالٹی کنٹرولر ہیں لیکن کبھی کبھی وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. اور انہوں نے کچھ سین بھیجے، تو آج ذرا مزہ کرتے ہیں. اس سین کو ویژولائز کریں اور آپ میں سے اگر دو چار لڑکیوں کے حوالے سے بھی اس طرح کا سین کریٹ کریں تو پھر مجھے وہ بھجوائیے. میں آپ کے شکریہ کے ساتھ اس کو شامل کیا کہنا چاہیے، جیسے کہتے ہیں نا شامل ویڈیو کروں گا. اوکے. وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک آدمی گھر سے نکلا اور انہیں لڑتے دیکھ کر بنا چھڑائے وہاں سے آگے چلا گیا. یہ کراچی ہے. دوسرا سین، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک آدمی گھر سے نکلا اور انہیں لڑتے دیکھ کر کہا میرے گھر کے سامنے مت لڑو، کہیں اور جا کے لڑو. یہ اسلام آباد ہے. تیسرا سین، دو آدمی لڑ رہے ہیں، تیسرا آدمی گھر سے نکلا اور انہیں چھڑانے لگا اور دونوں نے آپس میں لڑنا چھوڑ کر اس کو مارنا شروع کر دیا. یہ لاہور ہے. چوتھا، دو آدمی لڑ رہے ہیں، 20 آدمی اکٹھے ہوئے، 10 زخمی ہوئے، ہسپتال پہنچے، باقی 10 کو پولیس پکڑ کے لے گئی. یہ پخور ہے، یہ پشاور ہے. دو آدمی لڑ رہے ہیں، 20 آدمی اکٹھے ہوئے، ایک اور آدمی وہاں سے آیا اور چائے کا کھوکھا لگا لیا اور کھوٹا چائے. دو آدمی لڑ رہے ہیں، 20 آدمی اکٹھے ہوئے، سورج غروب ہونے لگا تو لڑائی کل پر ادھار کر کے روک کے چلے گئے. یہ سیالکوٹ ہے. دو آدمی لڑ رہے ہیں اور صلح کروانے والے آئے
लड़ने वाले सुलह करके जा चुके हैं, सुलह करवाने वाले अब भी लड़ रहे हैं, ये सादिकाबाद है। अच्छा, मुझे लगता है ये लिखने वाला को सादिकाबाद से ताल्लुक रखता है, जो कि सादिकाबाद का तस्करा आमतौर पे ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो इस वजह से। अच्छा जी, 2 आदमी लड़ रहे हैं, लड़ाई में जुगते कस रहे हैं, 20 आदमी इकट्ठे हुए और आके लड़ाई से ज्यादा जुगते एंजॉय करने लग गए। लड़ाई भी चल रही है, जुगते भी चल रही हैं, ये फैसलाबाद है। 2 आदमी लड़ रहे हैं, 20 आदमी इकट्ठे हुए, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन वजह किसी को मालूम नहीं है, ये रावलपिंडी है। और 2 आदमी लड़ रहे हैं, 20 आदमी इकट्ठे हुए, सुलह करवा रहे हैं, लेकिन 2 लड़ने वाले मिलकर अब 20 से लड़ रहे हैं, ये मुल्तान है। और 2 आदमी लड़ रहे हैं, 10 आदमी इकट्ठे हो गए, इन दोनों की जेब पर हाथ साफ करके रफू चक्कर हो गए, ये मरी है। ये तो बिल्कुल 110%। 2 आदमी लड़ रहे हैं, शेर व शायरी में झगड़ा चल रहा है, 20 आदमी इकट्ठे हुए हैं और वाह करने लग गए हैं, और सराइकी में वो कहते हैं शोध ने क्या शेर आखे, और इसी बात पे उनकी लड़ाई चल रही है, साथ साथ शेर व शायरी भी चल रही है। बकौल इनके ये भावलपुर है। वैसे भावलपुर में इस तरह की शायरी और इस तरह की लड़ाइयाँ, मैं काफ़ी साल भावलपुर रहा पर मैंने इस तरह देखा नहीं। अच्छा, 2 आदमी लड़ रहे हैं, 20 आदमी इकट्ठे हुए, इन दोनों को मस्जिद में ले गए, वहां पर परात में चावल डालकर और जग में पानी देकर मजीद 4 के साथ खाने पे बिठा दिया, मामला खत्म, ये मुरीद के है। और 2 आदमी लड़ रहे हैं, एक आदमी घर से निकला, उनकी वीडियो बनाने लगा, ये अटक है। और 2 आदमी लड़ रहे हैं, 20 आदमी इकट्ठे हुए, उन्हें तबलीग की और गले मिलवा के अपने साथ ही चिल्ले पे ले गए, ये रायवेंड है। चिल्ले का मतलब होता है कि आप 40 दिन के लिए तबलीग पे चले जाते हैं। 2 आदमी लड़ रहे हैं, दोनों के कबीले वाले मुसल्ला होके आए और उन दोनों को लेके एक एक पहाड़ पे चले गए और दोनों को मार दिया, एक दूसरे के उस बंदे को, और गोलियों की जुबान में मुज़ाकरात शुरू हो गए, ये स्वात है। 2 आदमी लड़ रहे हैं, फिर सुलह करके जाने ही वाले थे कि 20 आदमी इकट्ठे हो गए, उन दोनों को उनकी पुरानी बातें याद करवा के लड़ाई को गैर महदूद मुद्दत के लिए बढ़ाकर खुद वहां से चले गए। इनका ख्याल है ये सरगोदा है। और 2 आदमी लड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद दोनों के यार दोस्त बंदूकें लेके आ गए हैं और हवाई फायरिंग और गालियां निकाल के सभी थाने पहुंच गए हैं और पैसे देके अपनी जान छुड़ा रहे हैं। ये गुजरात है। और आखिरी मेरा ख्याल 2 आदमी लड़ रहे हैं, फिर 2 और आ गए और उनकी तरफ से लड़ने आ गए, फिर 2 और आ गए, उनकी तरफ से लड़ने लग गए। ये सिलसिला चल निकला है और उनमें से कोई भी नहीं जानता कि लड़ाई की वजह क्या है, ये मियाँ वाली है। और 2 आदमी लड़ रहे हैं, लड़ के थक गए, हर कोई सुलह करवाने, मगर कोई सुलह करवाने नहीं आता, फिर खुद ही वो शाम को सुलह कर लेते हैं, ये सखर है। और 2 आदमी लड़ रहे हैं, 20 आदमी इकट्ठे हो गए, 10-10 तकसीम होकर बैठ गए हैं, दंगल और लस्सी के दौर शुरू हो गए, हलाशेरी के साथ नारे और बुगले वाह 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 आवाज़ें निकालते हैं, वो निकाल रहे हैं। तो ये गुजरा वाला, आई डोंट नो इसमें से आप कितने शहरों से इत्तेफाक करें, लेकिन जब भी कोई इस तरह की बात कही जाती है या लिखी जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ होता जरूर है। 2 आदमी लड़ रहे हैं, 20,000 इकट्ठे हो गए, दोनों को स्क्रीन शॉट लेके दोनों की बैंड बजा रहे हैं और वो लड़ने वाले इन बॉक्स में एक दूसरे को माफी तलाफी कर रहे हैं कि एक ही कीता है। ये पाकिस्तानी फेसबुक की हैं जो साथ साथ दोनों काम कर रहे होते हैं। दूसरों की बेवकूफ़ी और हमाकतों पे हंसना चाहिए, और अगर ये बेवकूफ़ी और हमाकत आपके दिल में जगह बनाए तो बिल्कुल वैसा काम नहीं करना चाहिए। अक्लमंदी और दानिशमंदी ये होती है कि लोगों की बेवकूफ़ियों से भी, मैंने 2 ख़वातीन के जो नाम बताए थे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसी तरह के फजूलियात किस्म के नाम ढूंढें और फिर लोग आपकी मिसालें दें और तारीख में आपका जिक्र उन औरतों जैसा हो। इसी तौर पे कभी अपने दोस्तों के साथ हों तो उनके कमी मत बन जाइए, उनके वो जो हरावल दस्ते होते हैं जो उनके नाम पे लड़ने वाले मत बन जाइए। अपने शहर में हो, अपने कबीले में हो, अपने घर में हो, इनफैक्ट आपकी ग्रोथ कैसी है, यही आपकी डिक्शन बनती है, यही आपका तर्ज-ए-अमल बनता है। आप उस चीज़ को अवॉइड कर जाते हो या उसमें किसी मक्खी की तरह, और मक्खी हमेशा गंदगी पे जाके बैठ, अगर आपको इस तरह की चीज़ें पसंद होंगी तो आप यू वुड लव टू डू दैट, और आप वहीं बैठे रहोगे और शाम भी पड़ जाएगी। तो आपकी ये जितनी मिसालें मुख्तलिफ शहरों की दी गई हैं, अगर आपका शहर इसमें नहीं है तो अपने शहर के बारे में ज़रूर बताइए कि वहाँ कभी ऐसा हो तो क्या हो।
वैसे मैंने सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जब लोग आपस में दो लड़ते थे तो पास से गुजरने वाले उनको छुड़वाते नहीं थे, लम्हा भर को रुकते थे और ज़ोर से पढ़ते थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और लड़ने वाले शर्म के मारे, हया के मारे वहीं अपनी लड़ाई छोड़ देते थे। अच्छा, ये उनके साथ होता है जो अपने महबूब से मोहब्बत का दावा और सच्चा दावा करे। बेहिया बंदे को तो किसी का फर्क नहीं पड़ता। बेहिया ऐसे भी होते हैं कि दो लोग लड़ रहे थे और लड़ाई में उसका बेटा भी शरीक था, लड़ते लड़ते उसने वहां से देखा और भाग खड़ा हुआ, घर पहुंचा तो उसने जाके माँ को बताया कि अब्बा जी को दो लोग मार रहे हैं और बड़े बुरे तरीके से मार रहे हैं। तो उसने कहा तुम? उसने कहा मैं भी वहीं था, बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा के भागा हूँ। तो इनफैक्ट इस तरह की औलाद हो या इस तरह के दोस्त हों या इस तरह के लोग हों, तो जिंदगी में कभी कोई हादसा हुआ हो तो उसको, उसके तर्ज अमल को देख के अपने लोगों का जो वो होती है ना डायरेक्टरी, उसको भी क्रॉस करना चाहिए। कुछ लोगों को ज़िंदगी से निकालना चाहिए जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी का जो रिदम है वो ख़राब होता हो, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी का तवाज़ुन ख़राब होता हो, जिनकी वजह से इवन आपका इमेज ख़राब होता हो, जिनकी वजह से आपकी रेपुटेशन ख़राब होती हो, जिनकी वजह से आपके ख़ानदान की जो एक नेक नामी है वो बर्बाद होती हो। और कभी कभी आपकी खूबसूरती भी दौर पर लग जाती है। खूबसूरती सिर्फ आंखों की शक्ल की नहीं होती, तर्ज अमल की भी होती है, अमाल की भी होती है। और बहुत से लोग हमें हमारे उस इंटरनल खूबसूरती की वजह से जानते होते हैं, पर एक बुरे तर्ज अमल, बुरी कोताही, कमजोरी, कमी की वजह से जो हम दूसरों की वजह से कर गुजरते हैं, तो हमारा सारा इमेज ऐसे ही है जैसे खूबसूरत पेंटिंग तस्वीर हो और अपने हाथ से आप उस पर जाके एक रंग का बड़ा सा डिब्बा खुद ही डाल दें, तो क्या शक्ल होगी और क्या मंजर होगा। पर ये बिगाड़, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं होता। हम लोग अक्सर अपनी ज़िंदगियों के साथ यही करते हैं और बाद में फिर बैठ के रोते हैं कि लोग मजाक उड़ाते हैं। लोगों को मजाक उड़ाने की इजाज़त होती है पर मौका इंसान खुद देते, जो नहीं देना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।